Hi 7th class. 7th class. Have you watched previous video of this chapter, the atmosphere? Student, this is the part 2nd video of this chapter. Is that clear? This is the chapter 5th, the atmosphere. These are the learning objectives that we will read in this topic. Okay, the first one and second we have studied in the previous videos, and these were importance of the atmosphere, composition of atmosphere. Okay, but in this video we will study the remaining topics: structure of atmosphere and layer of atmosphere. Okay, let's start the chapter. Before going about our remaining topic, let we understand the previous topic. Is that clear, student? This is our earth, and you know very well our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. Okay, आपको दिखाई दे रहा है? Around the earth, this is atmosphere. Okay, student, the atmosphere extends up to a height of 1600 kilometer above the sea level. Okay, as you know, student, the earth atmosphere supports life. The atmosphere not only contains the air that we breathe in, but also protect us from the heat and harmful radiation of the sun. It means कि एटमॉस्फेयर हमें सिर्फ एयर ही प्रोवाइड नहीं करता, वो साथ साथ हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. एंड इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑप्टिमम. इज दैट क्लियर? And student, this pie chart shows the composition of atmosphere. Okay, the air that we breathe is actually a mixture of many gases. The most abundant gases found in our atmosphere are nitrogen 78%, and oxygen 21%, carbon dioxide, argon, helium, ozone, hydrogen, water vapor are found in lesser quantities. बहुत कम मिलते हैं ये lesser quantities में. Which gases? Carbon dioxide, argon, helium, ozone, hydrogen and water vapor. Okay, got it? Student, this diagram shows the layer of the earth atmosphere. Is that clear? You know very well this is our earth. Okay, and there are the 5 layer of the atmosphere. The first one is troposphere, second one stratosphere, third one mesosphere, fifth one thermosphere, and the 6th one exosphere. So there are 6 layer of the atmosphere. Sorry, 5 layer of the atmosphere. Got it? Student, this one troposphere, and the troposphere is the lowest and densest layer of the atmosphere. ये सबसे निचली लेयर बोला जाता है. एंड इट लाइज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. बिल्कुल अर्थ के सरफेस में ये आती है. एंड स्टूडेंट, द ट्रोपोस्फियर इज वेयर वेदर ऑकर. यू ब्रीथ द एयर इन द ट्रोपोस्फियर. ओके, और यहाँ पर क्या है? वेदर ऑकर. यहाँ पे वेदर प्रेजेंट रहता है, और यहीं पर क्या है हमारा ब्रीथिंग, मतलब यू ब्रीथ इन द एयर इन दिस
troposphere. Is it clear? And the second one, stratosphere. Student, this stratosphere, many airplanes fly in the stratosphere because it is very stable. And above the troposphere lies the stratosphere. Okay, this layer is almost free from weather phenomenon and clouds. यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल फ्री है क्लाउड से, और ये बहुत ही आइडल है. किस लिए? फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन के लिए. इज इट क्लियर? एंड द थर्ड वन इज मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर इज द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फीयर. ये स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर पड़ती है. एंड इन दिस लेयर द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद हाइट. ओके, टेम्परेचर क्या होगा? स्टार्ट डिक्रीजिंग, गिरता चला जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे. देर इज़ अ लिटिल वाटर वेपर, और यहाँ पर वाटर वेपर भी लिटिल क्वांटिटी में मिलेंगे. द एयर इज़ टू थिन फॉर वेदर टू ऑकर. ओके, यहाँ पर क्या होगा? मेट्रॉइड्स और रॉक्स फ्रेगमेंट जो आते हैं ट्रैवलिंग इन स्पेस बर्न अप व्हेन दे एंटर इन दिस लेयर. और ऊपर से जितने भी एस्ट्रॉइड्स आते हैं, सॉरी मेट्रॉइड्स आते हैं ट्रैवलिंग करते हुए, वो क्या करते हैं, जब यहाँ पर एंट्री करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, और अंदर अर्थ की तरफ एंट्री नहीं कर पाते. ओके, एंड द थर्मोस्फेयर. द थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मेसोस्फेयर. ओके, इन दिस लेयर क्या होगा? इस दिस लेयर में द टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट बिकॉज इट इज़ बीइंग डायरेक्टली हीटेड बाय द सन. और इसमें क्या होगा? टेम्परेचर होगा जो वो हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो लेयर है थर्मोस्फियर, वो बिल्कुल क्या होगा? डायरेक्टली हीटेड बाय द सन. ओके, एंड द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज नोन एज ionosphere. Okay, and this one is exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere, and this layer has very thin air. Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. Okay, and this layer merges into the outer sphere. outer space सैटेलाइट यहाँ पर होते हैं. गॉट इट? Student, this one is the another diagram of the atmosphere. This one is the another diagram of the layer of the atmosphere. Okay, और यहाँ पर उनकी हाइट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि किस लेयर की, कौन सी लेयर कितने किलोमीटर तक है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अच्छे से समझते हैं. नाउ स्टूडेंट, हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं. ये क्या है? हमारी अर्थ का सरफेस है. ये माउंटेन है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, एंड दिस इज़ द सी लेवल. ओके, सी लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया था, our atmosphere extend up to a height of 1600 kilometer above the sea level. ओके, सी लेवल से ये कितने ऊपर तक है? 1600 किलोमीटर. इज दैट क्लियर? एंड स्टूडेंट, this one is the first layer of the atmosphere, that is troposphere. Okay, this one, the first layer, the troposphere, is the lowest and densest layer of the atmosphere. ये सबसे lowest निचले वाली परत है, लेयर है, and it lies near the surface. ये बिल्कुल हमारी अर्थ के सरफेस में आती है troposphere. और इट्स एवरेज हाइट इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर. ओके,
एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। इट मीन्स सरफेस अर्थ के सरफेस से लेकर ये 13 किलोमीटर तक आती है। द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर हाउएवर वेरीज विद लोकेशन, ओके, एंड इट इज़ 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता है हमारी अर्थ के जो मिडल वाली जो लाइन होती है दैट इज़ इक्वेटर, और इक्वेटर से 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर के बिल्कुल पास में पड़ती है, ओके, एंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स में, ओके। एंड स्टूडेंट, दिस इज़ द लेयर वेयर वी लिव, और यही वो लेयर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ओके। एंड ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म, विंड, क्लाउड एंड फॉग ऑकर इन दिस लेयर, और इसी लेयर में सारे के सारे वेदर कंडीशन जो होती प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म, विंड, क्लाउड, ओके, और फॉग भी। इज दैट क्लियर? एंड टेम्परेचर इन दिस लेयर जनरली डिक्रीजेस विद द हाइट -1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 160 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड। इट मीन्स एल्टीट्यूड में से हम जितनी ऊपर मतलब डिक्रीज होते जाएंगे हाइट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, घटता चला जाता है, ओके। एंड स्टूडेंट, द अपर लिमिट, इट मीन्स द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर, अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। इसको क्या बोलेंगे? ट्रोपोपॉज। Got it? And student, above the troposphere layer से ऊपर कौन सी लेयर आती है? स्ट्रेटोस्फियर, I forgot to write here the exactly layer, okay, stratosphere. Is it clear? And it extends up to a height of 50 किलोमीटर। इट मीन्स ट्रोपोस्फियर हमारी 13 किलोमीटर तक थी, और 13 से 50 किलोमीटर तक हमारी कौन सी लेयर आएगी? स्ट्रेटोस्फियर आएगी, ओके। एंड दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम वेदर, और ये किससे बिल्कुल फ्री है? वेदर से। इसमें वेदर प्रेजेंट नहीं होता। ट्रोपोस्फियर में वेदर प्रेजेंट होगा, बट स्ट्रेटोस्फियर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम वेदर, ओके। एंड क्लाउड्स, और यहाँ पर क्लाउड्स भी नहीं होंगे। दैट्स वाई दस इट इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, और यहाँ आसानी से ये जो लेयर है किसके लिए मतलब बहुत अच्छी है? हमारे फ्लाइंग फॉर एरोप्लेन। यहाँ एरोप्लेन इसी लेयर में फ्लाई कर पाते हैं, ओके। So student, my question is there, why this layer is ideal for flying aeroplane? Because this layer is almost free from weather phenomenon and clouds. That's why it is ideal for flying aeroplane. Is that clear? और एक बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट, कि जो हमारी ओजोन लेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ओजोन लेयर क्या करती है? हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन लेयर भी कहाँ है? ये हमारी बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर। इसको हम बाद में अच्छे से स्टडी करेंगे, पहले हम अपनी थर्ड लेयर में आते हैं, ओके। दैट इज मेसोस्फियर। द मेसोस्फियर इज द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर वाली जो लेयर आती है दैट इज मेसोस्फियर, ओके। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर। इट मीन्स आपको जैसे मैंने बताया ट्रोपोस्फियर कहाँ कब तक होती है। नाउ स्टूडेंट, दिस वन इज आवर थर्ड लेयर, द मेसोस्फियर, ओके स्टूडेंट, एंड इट इज द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फियर, और ये स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर वाली लेयर आती है मेसोस्फियर, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर
50, अब ये 50 यहाँ से स्टार्ट होती है और 80 किलोमीटर तक होती है ये. इज दैट क्लियर? 50 to 80 किलोमीटर. ओके. एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, इट इज़ द कोल्डेस्ट एयर. यह सबसे कोल्डेस्ट एयर है. हाउ? ये कोल्डेस्ट एयर कैसे है? हाउ इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर? So student, answer is there because in this layer the temperature start decreasing with the height. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी क्या होगा? टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाता है, और डिक्रीज होगा तो वो कोल्डेस्ट लेयर यहाँ पर बनेगी. ओके. एंड देयर इज अ लिटिल वाटर वेपर. सो द एयर इज टू थिन. एयर बहुत ही थिन है यहाँ पर और फॉर वेदर टू ऑकर. एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, जो यूनिवर्स में जितने भी मेट्रॉइड्स हैं और रॉक फ्रेगमेंट हैं जो वो ट्रैवलिंग करते हुए स्पेस से हमारी अर्थ में एंट्री करते हैं, तो जो ये अर्थ की लेयर हैं, ये मेसोस्फीयर क्या करती है, जो यहाँ से वो अगर ऊपर यूनिवर्स से जब वो एंट्री करते हैं तो क्या करेगी? ये बर्न अप, उनको जला देती है और हमारी अर्थ के सरफेस तक उसको आने नहीं देती है. Is that clear? Meteoroids or rod fragment traveling in space burn up when they enter in this layer. जब वो इस लेयर में एंट्री करते हैं तो वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं. Some meteoroids that survive their journey and reach the earth surface are known as meteorites. इट मीन्स जो थोड़े बहुत मेट्रॉइड्स जब वहाँ से आते हैं और वो जल जाते हैं और बिल्कुल उनका थोड़ा बहुत पार्टिकल्स रह जाता है और वो हमारी अर्थ के सरफेस तक आ जाते हैं, तो उनको किस नाम से बोला गया है? मेट्रोराइट्स. इज दैट क्लियर? और जो मेसोस्फीयर से ये ऊपर वाली अपर लिमिट है, दिस लेयर इज नोन एज मेसोपॉज. ओके. इज दैट क्लियर? Now the fifth one is thermosphere. This is the thermosphere lies above the mesosphere. mesosphere से बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर आती है that is thermosphere. और it extend between. अब it extend between ये कहाँ से कहाँ तक है student? And this a thermosphere extend बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. अब ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच में आती है ये लेयर. और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये हमारा सी लेवल है. हम जब सी लेवल से बिल्कुल ऊपर तक जाते हैं किलोमीटर में, तो हमारे जो भी है एटमॉस्फेयर की लेयर हैं वो बदलती जाती हैं. इज दैट क्लियर? सो ये दिस थर्मोस्फेयर एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. ओके. एंड इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली. जो बहुत मतलब रैपिडली बढ़ता चला जाता है विद इंक्रीजिंग हाइट. बढ़ता क्यों चला जाता है स्टूडेंट? अब देखो यहाँ पर क्या था? टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, ये कोल्डेस्ट लेयर बोली गई है. और यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर रैपिडली. इट मीन्स टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. वाई? बिकॉज इट इज बीइंग डायरेक्टली हीटेड बाय द सन. मीन्स हीटेड बाय द सन डायरेक्टली. यहाँ से हीट बहुत डायरेक्टली आती है. दैट्स वाई ओके टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली. और स्टूडेंट, एयर टेम्परेचर इन दिस लेयर, एयर टेम्परेचर इन दिस लेयर reaches more than 1500 degree Celsius. ओके. एंड द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर, और इस लेयर का जो लोअर पार्ट है यहाँ वाला लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज नोन एज आइनोस्फेयर. आइनोस्फेयर बोलेंगे इसको. एंड दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आइकन. और इस लेयर में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स with help in radio transmission. Okay, it means in fact radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Reflected back. Okay, now the uppermost layer is exosphere. Student, the uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere and it extend, और ये कहाँ से कहाँ तक है? It extend up to 1000 kilometer. Is that clear? 1000 kilometer. Okay. This layer is very thin air. यहाँ पे बहुत ये लेयर है,
कैसी है? वेरी थिन एयर। लाइट गैसेस कौन कौन सी हैं? लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लॉट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। यहाँ पे फ्लॉट करती हैं विच gases? Hydrogen and helium float into the space. Okay, and density of air is very low. बहुत ही लो है यहाँ पर एयर के डेंसिटी, एंड टेम्परेचर गोज अप टू 4500 सेल्सियस। ओके, और टेम्परेचर यहाँ पर कितना हो जाता है? 4500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गोज अप टू 4500 डिग्री सेल्सियस। बियॉन्ड दिस लेयर, और इस लेयर से बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल इस लेयर से ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट? आउटर स्पेस। आउटर स्पेस है यहाँ पर। बियॉन्ड दिस लेयर इज आउटर स्पेस। आउटर स्पेस यहीं पड़ता है। ओके, एंड दिस लेयर मर्जेस इनटू द आउटर स्पेस। गॉट इट? अब नाउ हम ये जानेंगे, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं दीज आर द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये कहाँ से कहाँ तक है वो भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक पॉइंट को हम पीछे छोड़ गए हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि ओजोन लेयर है वो कहाँ और किन लेयर के बीच में आएगी, और ओजोन लेयर व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ओके, फॉर आवर अर्थ। Now student, this diagram shows about the layer of the ozone. ओके, अब ये ओजोन लेयर है, मैंने आपको देखो पहले भी बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ट्रोपोस्फियर है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस टू 13 किलोमीटर। इट मीन्स द एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। ओके, एंड अब 13 से ऊपर जो 50 तक है वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर आती है। अब जो ओजोन लेयर है वो आती है बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर। अब वो कैसे? अब देखो, दिस ओजोन लेयर फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर विच बिगिंस अबाउट कहाँ से शुरू होती है? 10 किलोमीटर से ये 16 किलोमीटर। इट मीन्स जो कि ट्रोपोस्फियर की हाइट है उससे नीचे 10 से लेके और ये 50 किलोमीटर तक हमारी स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बीच की जो लेयर है ये बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर, ये वहाँ पर आती है ओजोन लेयर। इट मीन्स 10 to 16 किलोमीटर, ओके, अबव द अर्थ सरफेस, और इसको हम 8 to 10 माइल्स भी बोल सकते हैं। 8 to 10 माइल्स। ओके स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट दिस लेयर इज़ वेरी वेरी important for our earth. How it is important student? It acts as a shield to protect earth's surface from the sun harmful ultraviolet radiation that could injure or kill most living things. It means जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये क्या करती है? उनको एब्जॉर्ब कर लेती है या बैक कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो अर्थ की सरफेस पर वो अल्ट्रा वायलेट रेज एंट्री नहीं कर पाते हैं। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी हार्मफुल हैं, अगर ये एंट्री कर भी लेंगी तो ये बहुत ही लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल होंगी, इनसे कैंसर तक हो सकता है। ओके, ultraviolet rays. Okay, now I'm again repeating, it acts as a shield. ये बिल्कुल शील्ड की तरह काम करती है। शील्ड क्या करती है? हमें बाहर आउटर जो चीज़ें आती हैं हमारे अटैक करने के लिए, हम उनसे प्रोटेक्ट करती है शील्ड। तो ये ओजोन भी एक शील्ड की तरह काम करती है। किससे? टू प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑन दैट कुड इंजर और kill most living things. Okay, now the student, the atmosphere is a layer of gases that envelops the earth. Okay, I think student आप अच्छे से हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर को समझ गए हैं। ओके, दिस डायग्राम ऑलरेडी shows you the layer of the
atmosphere. The first one is troposphere, and stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. और ozone layer है, that is the between of the troposphere and stratosphere. Okay, I think our chapter, you got it. Now our chapter is over and you got it, so keep reading. Okay.